ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ارسم کل 7 بھائی تھے۔ ارسم ان سب میں سب سے چھوٹا تھا۔ ارسم گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود سب سے سمجھدار تھا۔ ارسم کے دادا دادی اپنے 7 پوتوں پر فخر کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹوں سے نوازا۔ جب وہ ان کو لے کر خاندان کی تقریب میں جاتے تو دادی پہلے ہی سب پر نظر کا دم کر کے لے کر جاتی اور ادھر بھی ان پر پھونکے مارتی رہتی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کے بچوں کے لباس وغیرہ بھی اعلیٰ ہوتے تھے۔ ارسم کی ماں 7 بیٹوں کی پیدائش کے بعد اب مزید بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس بات سے اب ارسم کے باپ کو فکر لاحق ہو گئی۔ پہلے بیٹے کی پیدائش سے قبل ہی وہ بیٹی پیدا ہونے کی دعائیں کرتے رہتے تھے تو ان کی ماں ان کو ڈانٹ دیتی کہ ایسی بدفعال منہ سے مت نکالو۔ ارسم کے پاپا حیران ہو کر کہتے، اماں بیٹی ہونا کیا بدفعال ہے، آپ خود بھی تو ایک بیٹی ہیں۔ اس بات سے ان کی ماں لاجواب ہو کر پہلو بدلنے لگتی، مگر پھر بھی بیٹی کی دعائیں کبھی نہ کرنے دیتی، جبکہ ارسم کے پاپا کو بیٹی کی شدید خواہش تھی۔ وہ ارسم کی ماں کو بھی ہر وقت کہتے رہتے کہ بیگم تم بیٹی ہی پیدا کرنا، بے شک میری اماں ہر وقت پوتا پیدا ہونے کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ وہ جواب میں کہتی، یہ اپنے بس میں ہوتا تو ہر کوئی زیادہ تر بیٹے ہی پیدا کر رہا ہوتا، آپ کی طرح بہت ہی کم کسی کو بیٹی کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی پہلی اولاد ہونے پر، ورنہ تو لوگ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں مگر بیٹا نہیں ہوتا تو مرد اپنی بیوی کو یا تو طلاق دے دیتے ہیں یا دوسری شادی کر لیتے ہیں یا پھر ساری زندگی بیوی کو تانوں کی زد میں رکھتے ہیں۔ ارسم کے جب لگاتار 7 بھائی پیدا ہوئے تو ابا ہر بیٹی کی پیدائش پر ایک ہی بات دہراتے رہتے کہ اگر بیٹی پیدا نہ ہوئی تو بد دعا سچ ہو جائے گی۔ ارسم کو سمجھ میں نہ آتی کہ وہ کس بد دعا کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ارسم سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے سب سے لاڈلا اور سب کی آنکھ کا تارا بھی تھا۔ وہ جو بھی بات منہ سے نکالتا وہ پوری کر دی جاتی۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں ارسم کی پیدائش کے چند سال بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ ایک تو وہ ماں کا لاڈلا بھی تھا اور ماں کو یاد کر کے روتا بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی دادی کی گود سے اترتا نہیں تھا، ہر وقت گود میں چڑھا رہتا۔ دادا اس کو بہلانے کے 100 طریقے کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ سب کا کچھ زیادہ ہی چہیتا بن گیا۔ اس کے دادا کو زیادہ اولاد ہونے کا بہت شوق تھا کیونکہ وہ اکلوتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کے ہاں 10 بچے پیدا ہوں۔ پھر 7 بیٹے پیدا ہونے پر وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ وہ اکیلے تھے اور ان کو بہت شوق ہوتا تھا کہ کاش ان کے بھی زیادہ سے بہن بھائی ہوتے۔ کوئی کچھ کہتا یا لڑتا تو بھائی اس کی طرفداری کرتے۔ پھر وہ خواہش تو نہ پوری ہو سکی مگر اپنے بیٹے کے 7 بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر جیتے اور خوشی سے نہال ہوتے رہتے تھے۔ کسی انجان کو پوتوں کی تعداد بتانے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ ایشل اپنے ڈرائیور کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی، ارسم بھی اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ دونوں میں پیار تھا۔ ایشل ارسم سے پوچھتی کہ کیا تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں وہاں سے رشتہ جوڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا کہ ایشل کا تعلق ہیرا منڈی سے ہے، سوائے ارسم کہ اس نے کالج میں کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا اور نہ ہی کوئی دوست بنائی ہوئی تھی۔ ارسم اسے بہت تسلی دیتا کہ تم فکر نہ کرو، میں پہلے تم سے کورٹ میرج کروں گا، پھر میں کسی کو گھر میں بتاؤں گا۔ ہیرا منڈی کو 2 میاں بیوی چلا رہے تھے اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایشل کو کوئی اغوا کر کے وہاں بیچ گیا تھا۔ ایشل کا پالنے والا اس کو خاص اس لیے پال رہا تھا کہ اس کی بیوی کہتی تھی کہ ہم اس بہت ہی خوبصورت بچی کو بہت حفاظت سے پالیں گے اور اس سے ابھی دھندا نہیں کرائیں گے، بعد میں اس کو کسی بہت اچھے گاہک کے آگے بیچ دیں گے۔ اس لالچ میں وہ اسے اچھی طرح رکھنے لگے، پڑھانے لگے۔ اس کا پورشن باقی گاہکوں سے الگ رکھا گیا تھا کیونکہ ان کو پہلے بھی اس قسم کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس طرح ایک اور کنواری لڑکی کو اسی لالچ میں پال رہے تھے کہ کنواری کے زیادہ دام ملتے ہیں، لہٰذا انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ کوئی گاہک داؤ لگا کر اس کی عزت بھی پامال کر کے چلا گیا اور ان کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ اب ایشل کو وہ الگ پورشن میں سب سے الگ تھلگ رکھتے کیونکہ یہ تو ویسے بھی ان سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو وہ لوگ باپردہ رکھواتے تھے۔ اس کو انہوں نے سختی سے آرڈر کیا ہوا تھا کہ کالج میں بھی تم نے بالکل نقاب نہیں اتارنا۔ ایک دن وہ سب سے الگ تھلگ کھڑی ہو کر بوتل سے پانی پی رہی تھی کہ ارسم نے اسے اچانک ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اسی وقت اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا۔ پھر اب ارسم اتفاق سے اس کی کلاس میں ہی پڑھتا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو گئی۔ ایشل ارسم سے لگاؤ محسوس کرنے لگے۔ اسے وہ بہت سلجھا ہوا لگتا، دوسرے لڑکوں سے مختلف لگتا۔
वो कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर न देखता था, हर औरत की इज्जत करता था। उसने ईशल को बहुत यकीन दिलाया था कि वो उससे कोर्ट मैरिज करके फिर घर वालों को बताएगा। इनकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी, इसलिए ईशल उससे कोर्ट मैरिज की जिद करने लगी। आखिर दोनों ने फैसला किया कि वो कल कॉलेज आने के बाद घर से सीधे कॉलेज पहुंचेंगे और ईशल कॉलेज के अंदर दाखिल होगी और थोड़ी देर के बाद वो कॉलेज से फ़ौरन बाहर निकल आएगी। जो ही इसके ड्राइवर की गाड़ी नज़रों से ओझल हो जाएगी, बाहर अरसम ने एक रिक्शे वाला खड़ा रखा होगा। वो रिक्शे का नंबर और ड्राइवर की वीडियो भेज देगा ताकि ईशल किसी गलत रिक्शे में न बैठ जाए। फिर अरसम ज़रा दूर कॉलेज से गाड़ी खड़ी करके खड़ा होगा। इसी प्लान के मुताबिक ईशल घर से कॉलेज के लिए निकली और मतलूबा रिक्शे में जाकर सवार होकर उसे बोली, जल्दी चलो। खुद हिजाब चेंज कर लिया और जब वो रिक्शे से उतरी तो करीब गाड़ी खड़ी करके उसका ड्राइवर किसी को फ़ोन कर रहा था। उसी वक्त उसने अरसम को मैसेज कर दिया कि वो यहाँ नहीं उतरेगी, सीधी कोर्ट जाकर ही उतरेगी। उसने रिक्शे वाले को भी कह दिया कि गाड़ी वाले के पीछे ही चलते रहो। जब वो लोग कोर्ट पहुंचे तो अरसम ने वकील से बातचीत तय कर ली थी और जब दोनों कोर्ट पहुंचे तो वकील ने इन दोनों का निकाह करवा दिया। ईशल की आंखें बरसने लगीं। वकील ने दोनों को मुबारकबाद दी। अब ईशल ने कहा कि अब उसी वक्त मुझे अपने घर लेकर चलो। अब मैं मज़ीद इस खतरे वाले घर में नहीं रह सकती जहां हर लम्हा मुझे अपनी इज्जत पमाल होने का डर लगा रहे। अब मैं कानूनी तौर पर तुम्हारी लीगल बीवी हूँ और मुझे तुम्हारे घर पर रहने का पूरा हक हासिल है। अरसम उसे लेके घर पहुंचा तो दादा ने जब उसके साथ एक लड़की को देखा तो अरसम ने कहा कि ये लड़की उसकी क्लास फेलो है और उसके वालिदैन वफात पा चुके हैं। चचा चची इसको किसी बूढ़े शख्स से अभी उतना ही कहा था कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। सब अंदर भागे तो पता चला कि दादी वॉशरूम में गिर चुकी हैं और उनका पाँव फ्रैक्चर हो चुका है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो दर्द से कराहते हुए बोली कि मैं नहीं बचूंगी, मैं अपने अरसल का सेहरा देख कर जाना चाहती हूँ। इनकी भतीजी की बेटी से जल्दी में हॉस्पिटल में ही उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका निकाह कर दिया गया। अरसम ईशल के आगे रोते हुए बोला कि मैं दादी की इस हालत में उनको इनकार नहीं कर सकता, मगर जल्द ही मैं तुम्हारा रिश्ता भी सबके सामने ओपन कर दूंगा। इस वक्त मैं दुनिया में अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। ईशल ने भी उदासी से कहा कि मेरे लिए यही बहुत है कि मैं एक महफूज छत के नीचे आ गई हूँ। इतनी बड़ी हवेली थी, सब भाइयों के अपने अपने कमरे थे। ईशल दादी के रूम में शिफ्ट कर दी गई थी और दादा भी उसी रूम में होते थे। ईशल को वहाँ सोफ़ा कम बेड पर सोना पड़ता था, मगर फिर भी वो खुश थी। अरसम के 3 भाई मुल्क से बाहर अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। एक ससुराल में शिफ्ट हो गया था, 2 फौजी थे तो वो अपनी फैमिलीज को साथ रखते थे। एक सिर्फ अरसम बचा था जो उनके साथ रहता था। बाकी आर्जी तौर पर वहाँ मेहमानों की तरह आते थे और रहते थे। निकाह कर दिया गया। ईशल को दादा ने कहा कि वो बेसहारा है, इसलिए वो हमारे साथ ही रहेगी, हम इसका सहारा बनेंगे। वो उसे बेटी बेटी कहते न थकते। दादी कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गई थी। ईशल ने घर को संभाल लिया था। किचन का सारा काम और पूरे घर के निज़ाम को ईशल अच्छी तरह से देख रही थी और दादी उसे बहुत प्यार कर रही थी कि इसने इस घर को संभाल लिया था। घर में काफ़ी मुलाजमीन थे, सबसे काम करवाना पड़ता था। दादा का असूल था कि सब मुलाजमों को रात को घर में कभी नहीं रखना, सबसे सारा दिन काम करवाओ और शाम को या रात को भी वापस भेज दो। हत्ता कि वो हिफाजत के लिए किसी चौकीदार को भी नहीं रखते थे। वो कहते थे कि चौकीदार कौन सा हमारा सगा होता है, किसी वक्त वो भी नकब लगा सकता है, बल्कि वो तो घर का बेदी बन जाता है और इसी से ज़्यादा ख़तरा रह सकता है। इसीलिए अपने अल्लाह ताला पर भरोसा करके ही उसी का साथ ही काफ़ी है। अरसम के दादा ने ईशल से कहा था कि आप सब काम मुलाजमों से अपनी निगरानी में कराओ तो हम पर बहुत एहसान होगा, क्योंकि अरसम की दादी बूढ़ी हो चुकी हैं और अरसम की माँ फौत हो चुकी है। अरसम के वालिद कहते कि अरसम ने तुम्हें बेसहारा समझकर अगर यहाँ सहारा देने के लिए लाया है तो हम इसका सहारा बनेंगे। अरसम की मंगेतर अभी पढ़ रही थी। निकाह करने के बाद शादी उसकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद रखी गई। दादी भी पुरसुकून हो गई थी कि अरहम के वालिद ने एक दोस्त के कहने पर एक तवाइफ से शादी करने का इरादा किया जो इस धंधे को छोड़ना चाहती थी और हामला थी और उसे बच्चे के लिए किसी शरीफ मर्द और घर की ज़रूरत थी। दादा ने बेटे का साथ दिया कि तुम एक नेकी का काम करोगे। अरसम के वालिद सादगी से एक तवाइफ को ब्याह लाए जो बहुत अच्छी थी। उसने सारे घर को आते ही संभाल लिया। वो अरसम से भी बहुत प्यार करती और ईशल से भी बहुत प्यार करती। ईशल ने सारे घर का निज़ाम उसके हवाले कर दिया और बड़ी मुश्किलों से करीबी पार्लर में पार्लर का कोर्स सीखने और वहीं जॉब करने की इजाज़त चाही। अरसम को उसने बताया कि इस तरह उसका जहन भी बटा रहेगा। इस तवाइफ ने एक बच्ची को जन्म दिया तो अरसम के वालिद इस बच्ची से बहुत प्यार करते थे।
अभी तक ईशल ने अपना और अरसम का रिश्ता किसी को नहीं बताया था। उसने अरसम से कह दिया था कि वो जितना हो सके इस रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रखेंगे, क्योंकि वो अपने मोहसिनों को सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहती। अरसम की भाभियां जो पाकिस्तान में रहती थीं, वो कभी कभार जब भी आती अपने करीबी पॉलर ज़रूर जाती और साथ ईशल को भी ले जाती। पॉलर वाली आंटी बहुत मिलनसार और अच्छे अखलाक की मालिक थीं। अरसम की भाभियां उसे एक मुलाजमा से ज़्यादा अहमियत न देती थीं। वो हर किसी से उसका एक मुलाजमा की तरह ही तारुफ करवाती थीं। अरसम ने दादी को गिला किया कि ये कोई मुलाजमा तो नहीं है, फिर भाभियां इसे ऐसे क्यों कहती हैं? तो दादी अरसम को डांट कर कहती, तो क्या कहें, अगर हम दुनिया वालों को ये बताएंगे कि जी हमारा लाडला पोता इस लड़की को घर लेकर आया है, तो दुनिया क्या क्या बातें बनाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम जो कर रहे हैं वो करने दो और ज़्यादा बहस ना किया करो। इसी को गनीमत समझो कि हमने उसे इधर रहने की इजाज़त दे दी है। अरसम बेबस हो जाता और ईशल उसे तसल्ली देती कि चलो हम एक दूसरे के सामने तो है ना। पॉलर वाली इसके टैलेंट से मुतासिर थी। अरसम ने पॉलर वाली को कहकर, मेरे घर वाले इस पर अक्सर ज्यादती कर जाते हैं, तो आप इसे अपने पास रिहाइश दे दें, मैं इसकी रिहाइश वगैरह का सारा खर्चा आपको दूंगा। तो पॉलर वाली आंटी ने अरसम से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खर्चे की परवाह न करो, मैं वैसे भी इधर अकेली होती हूँ, शौहर बीमार रहते हैं और बेटा बहू मुल्क से बाहर होते हैं, अच्छा है घर में रौनक लग जाएगी। अरसम उनके घर आया और पॉलर वाली के शौहर से मिला और उन्हें फ़कत इतना बताया कि वो उससे खुफिया निकाह कर चुका है और निकाह नामा भी बताया। तो वो बोले, ठीक है, तुम जब चाहो घर आकर अपनी बीवी से मिल सकते हो। अरसम ने दादा दादी को बता दिया कि वो अपनी मर्जी से पॉलर में शिफ्ट हो गई है। तो दादी को जो इससे सुख मिलते थे वो इनका ववेला मचाने लगी कि उसे वापस लाओ, मगर अरसम न माना। अलबत्ता उसकी सौतेली माँ तवाइफज़ादी उसको मिलने पॉलर जाया करती थी, क्योंकि ईशल ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो जिस गंदी जगह से आई है मैं भी उसी जगह से आई हूँ और मैं आपकी बहू लगती हूँ। वो खुश होकर बोली कि चलो हम इस गंदी जगह से तो बच निकले। इस जुल्म के आगे जहाँ अपनी मर्जी ना होते हुए भी इस गंदे शराबी और बदबूदार मुंह और गंदे पसीने वाले जिस्म के लोगों के साथ सोना पड़ता था, तो ऊपर वाले का करम हुआ कि इन लोगों के जुल्म से निजात मिली। इस जुल्म के आगे दुनिया की ये ज्यादतियाँ कुछ अहमियत नहीं रखती। पॉलर वाली आंटी ने ईशल को अलग से एक रूम दे दिया जहां अक्सर अरसम सबसे छुप कर आता और ईशल के साथ वक्त गुजारता। ईशल उम्मीद से हो गई। पॉलर वाली ने उसका बहुत साथ दिया और उसका बाकायदगी से चेकअप करवाती। अरसम ने अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया। जिस दिन अरसम का बेटा हुआ उसी दिन दादी चल बसी और अरसम ईशल के पास हॉस्पिटल ना आ सका। अलबत्ता पॉलर वाली आंटी ने उसका बहुत साथ दिया, उसे बहुत तसल्ली देती कि फिक्र न करो, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें बेटी मान लिया है क्योंकि मेरी बहू ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, वो भी इसी की सुनता है और उसके 2 जुड़वां बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं पॉलर भी इसीलिए चलाती हूँ कि बेटे को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भेजने देती। ईशल के बच्चे से इन दोनों मियाँ बीवी का दिल खूब लग गया था। पॉलर वाली का शौहर इसको बेटी की तरह चाहता और वो भी इन दोनों की वालदैन की तरह खिदमत करते। क्योंकि ईशल को घरदारी और खाना पकाना इतना ज़्यादा ना आता था, तो पॉलर वाली ने उसे काफ़ी कुछ सिखाया। खाना पकाना वो सीख गई। अगर कहीं कुछ कसर होती तो वो प्यार से हौसला अफजाई करती। इसका शौहर इसके खानों की तारीफ करता रहता। दोनों अब उसके बच्चे के साथ लगे रहते और बहुत खुश रहते। अरसम को इधर आने का मौका कम मिलता कि दादी की फौतगी पर सब आए हुए थे और वो अब घर के करीब रिहाइश होने के सबब सबसे छुप कर ना आ सकता था। इसीलिए ईशल ने उसे घर आने से मना कर दिया और वीडियो बच्चे की बना बना कर भेजती रहती। उसने अरसम के घर वालों से बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ दिया क्योंकि अरसम की रुखसती हो रही थी। इसकी शादी की धूमधाम से तैयारियां शुरू थीं। अरसम के बाहर से भाई भाभियां भी शादी में शिरकत के लिए आ चुके थे। कुछ दिनों बाद शादी थी। ईशल ने भी पॉलर वाली आंटी से मेकअप करना सीख लिया। पॉलर वाली आंटी का शौहर जो बीमार रहता था वो ईशल के आ जाने से दिन ब दिन सेहतयाब होता जा रहा था। वो पहले प्रॉपर्टी का काम करता था, अब उसने दोबारा वही काम शुरू कर दिया और वो चलने लगा था। इसका ऑफिस घर से दूर पड़ता था और वो बीवी से कह रहा था कि मेरे ऑफिस के पास घर ले लो और अब शायद तुम्हें दोबारा पॉलर चलाने की ज़रूरत भी ना रहे। तुम अपनी मुंह बोली बेटी और नवासे के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारो। तुमने मेरी बीमारी में बहुत मेहनत की थी और मेरा बहुत साथ दिया। जिस दिन अरसम की शादी थी ईशल बहुत रोती रही थी और पॉलर वाली आंटी उसे बहुत तसल्लियाँ देती रही थी। वैसे भी पॉलर वाली आंटी पॉलर और घर सेल कर चुकी थी और ईशल को बताते हुए दोनों झिझक रही थी और उनसे 1 माह की मोहलत मांग ली थी। उसी वक्त उसने शौहर से कहा कि जल्दी से 1 दिन में घर ढूंढो, कल अरसम का वलीमा है और उसकी दुल्हन ने इधर तैयार होने आना है, क्योंकि अरसम के घर की सारी औरतें इसी पॉलर से तैयार होने आई थीं।
जल्दी जल्दी सामान बंदे बुलाकर पैक करवाया गया। ईशल को पॉलर वाली आंटी ने सब सच बता दिया तो वो रोते हुए बोली, आंटी मैं तो खुद अब अरसम की जिंदगी से निकल जाना चाहती थी, इसके बताए बगैर, ताकि वो अपनी नई बीवी के साथ दिल लगाए और उसी के साथ जिंदगी बसर करे। मेरे लिए अल्लाह ताला ने बेटे की सूरत में एक सहारा दे दिया है। ऐसा ना हो कि वो लोग मुझसे मेरा ये सहारा भी छीन लें, तो फिर मैं किधर जाऊंगी। जब वो लोग नए घर में पहुंचे तो जल्द ही उनका वहां दिल लग गया और अब दोबारा पॉलर वाली आंटी ने पॉलर छोड़ दिया। वो ईशल को बताने लगी कि ये उनका बहुत पहले पुराना मोहल्ला होता था, यही उनकी शादी हुई, फिर बेटा पैदा हुआ, 2.5 साल के बाद उनकी बेटी पैदा हुई। ईशल ने हैरत से पूछा, बेटी? पॉलर वाली आंटी ने रोते हुए बताया कि मेरी बेटी घर में एक बूढ़ी पुरानी दाई के हाथों पैदा हुई थी। उसने मुझे बताया कि बेटी मुर्दा पैदा हुई थी। मैंने पूछा कि किधर है तो बोली, उससे हमने नदी में बहा दिया है। मैं उस पर चीखी चलाई, हिम्मत भी ना थी बोलने की, क्योंकि मेरा शौहर भी दूसरे शहर गया हुआ था और मेरा मैका ससुराल भी दूर दूर था। ससुराल में सास ससुर हयात न थे, बहन भाई शादीशुदा थे, जबकि मैके में भी वालिदैन हयात न थे और बहन भाई दूर दूर और शादीशुदा थे। मेरा बच्चा भी छोटा था और मुझे उसकी भी फिक्र थी। 2 दिन बाद बूढ़ी दाई मर चुकी थी और जब मैंने आस पड़ोस से बच्ची के बारे में पूछा तो कोई भी ना बता सका। सब ने लाइल्मी का इजहार किया और दाई भी बेऔलाद थी और अकेली रहती थी। क्या पता फिर इस दाई ने मेरी बच्ची वाकई नदी में बहा दी थी या किसी के आगे बेच दी थी। कोई ना बता सका। मेरे शौहर ने पुलिस बुलवा कर भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर बच्ची का कोई सुराग ना मिल सका। ईशल ने कहा, आंटी मैं भी हीरा मंडी से आई हूँ, आज आपको सच बताना चाहती हूँ। फिर मुझसे अरसम ने कोर्ट मैरिज कर ली। पॉलर वाली आंटी ने एकदम चिल्ला कर कहा, गंदी औरत, तू मेरे घर में क्या कर रही है? पहले क्यों ना बताया कि तू एक बाजारी औरत है? तू हमें पका कर खिलाती रही। थू। इतने में शोर सुनकर उसका शौहर भागता हुआ आया और जब उसने शौहर को बताया कि ये एक बाजारी औरत है, कब से हमारे घर को गंदा कर रही है, इसे फौरन निकालो ताकि घर साफ हो। ईशल रोते हुए कुछ बोलने लगी तो पॉलर वाली आंटी के शौहर ने बीवी को कॉल करते हुए कहा, बेगम कोई पैदाइशी कोठे वाली नहीं होती। अब अगर ये उस माहौल से निकल भी आई है और एक शराफत की जिंदगी गुजार रही है तो फिर इसे ऐसे लानतान करना नाजायज़ है। मगर बीवी बाजिद रही कि मेरा बेटा बहू आने वाले हैं। इस बाजारी औरत का क्या भरोसा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। मगर शौहर ने कहा कि ये अब हमारी बेटी जैसी है। मर्द की एक जुबान होती है, इसे बेटी बोला है तो ये बेटी ही है। मैं इसे घर से नहीं निकालूंगा क्योंकि इसका अब हमारे अलावा कोई ठिकाना नहीं। पॉलर वाली आंटी ने कहा कि अब मैं इसके हाथों का पका नहीं खाऊंगी। आपको खाना है तो खाएं, इसे बेटी समझते रहें, मगर मेरे लिए आज से कुछ भी नहीं। पॉलर वाली आंटी ने इसके हाथ से खाना पीना छोड़ दिया। इसको कोसने देती रहती। जब शौहर घर ना होता, बच्चे को भी ना बुलाती, उसे बाजारी औरत कहती रहती। वो बाहर दूध वाला आता या कोई सब्जी वाला, वो उस पर शक करने लगती और उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देती। बच्चे पास आना चाहता तो उसे धुतकार कर कहती, पीछे हट, न जाने तुझ में कितने। ईशल जल्दी से उसको आधी बात सुनकर ही कमरे में ले जाती कि बच्चे के जहन पर बुरा असर न पड़े, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। उसने अपने मोबाइल से मैसेज करके पॉलर वाली आंटी की तरफ से अरसम को ये लिख दिया कि तुम्हारी बीवी और बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए और अब तुमसे हमारा ताल्लुक वास्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तुमने इसके रिश्ते को किसी पर जाहिर न किया। इसके बाद उसने सिम बंद कर दी और उसे ब्लॉक भी कर दिया। जब अरसम ने पढ़ा तो बहुत रोया चलाया। सब जमा हो गए। वलीमे का दिन था, वो तड़प तड़प कर रोने लगा। सब हैरत ज़दा रह गए। सारे रिश्तेदार पूछने लगे तो उसने सारी सच्चाई सबको बता दी। उसके दादा ने उसे रोते हुए कहा कि हमारा पोता पैदा हुआ और उस दुनिया से चला भी गया। तुम अगर पहले बताते तो हम उसे कबूल क्यों न करते? तुम्हारे बाप ने भी तो तवाइफ से शादी की थी, उसे कबूल कर लिया तो तुम्हारी बीवी को क्यों न करते? पहले बताते तो हम अपनी बहन की शादी तुमसे न करवाते। इसकी बीवी उसे तसल्ली देते हुए बोली, मैं इन दोनों को दिलो जान से कबूल करती। रिश्तेदार औरतें आपस में बातें करने लगी कि इनको तवाइफें ही मिली थी शादी करने के लिए। अभी तो इसकी बीवी कह रही है ना कि मैं उसे कबूल कर लेती, जानती है कि वो मर चुकी है, वरना जिंदा होती तो फिर पूछते। अरसम की बीवी उसको हौसला देती रही, वो इसका बहुत ख्याल रखती। एक के बाद दीगरे 3 बेटियां पैदा हो गई। वक्त बड़ा मरहम है। दादा इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरसम अपनी बेटियों पर जान देता। अपने बेटे की तस्वीर उसने पूरे घर में लगा दी। बहनें सबको फख्र से बताती कि ये हमारा भाई है। अरसम का बाप भी उसे पोतियों पर जान छिड़कता। हर वक्त कहता, शुक्र है मेरी बेटी हो गई, वरना एक पीर ने कहा था कि अगर बेटी ना हुई तो तुम्हारे बेटे मर जाएंगे। अरसम एक दिन बाप की अलमारी से कुछ निकाल रहा था
کہ उसे तवाइफ की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट नजर आ गया तो ये देखकर अरसम के पांव तले से जमीन निकल गई कि इसमें उसका डीएनए टेस्ट था जो उसके बाप से मैच करता था। वो सीधा तवाइफ माँ के पास जाता है और पूछता है कि आपकी जब ये जायज़ बेटी है, हमारी बहन है, फिर आप रो रो कर क्यों मेरे बाप से कह रही थी कि वो 15 साल की हो गई है, मेरी बेटी को बचा लो। तो वो रोते हुए बोली, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ की मालकन मुझे धमकी देती है कि जब तेरी बेटी 15 साल की होगी तो मैं उसे अगवा करवा लूँगी और उसे तवाइफ बना दूँगी। अरसम ने गरज कर कहा कि उसके 7 भाई हैं, वो कैसे इतनी जुर्रत कर सकती है। उसकी सौतेली माँ खुशी से उसका शुक्रिया अदा करती और बताती है कि तुम्हारे वालिद भी मुझे तसल्ली देते थे, मगर फिर भी मुझे तसल्ली न थी कि वो तो बूढ़े हैं और ये उनके बुढ़ापे की औलाद है। इसके वालिद ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी वैसे ही एक पीर की बात से डरता रहा, चलो इस बहाने एक तवाइफ के साथ नेकी कर बैठा और उससे शादी करके उसे इज्जत की ज़िंदगी मिल गई। ईशल की पार्लर वाली आंटी छुप छुप कर बच्चे को प्यार करती और रोती। वो बच्चे के बगैर रह नहीं पा रही थी। उसके बहू, बेटा और पोता भी घर 2 माह की छुट्टी पर आए हुए थे। ईशल का बच्चा उसके पेट पर से कपड़ा हटाकर बोला, मामा मामा। ईशल ने जल्दी से कपड़ा डालकर उसे डांटा, ऐसे कपड़ा नहीं हटाते। पार्लर वाली आंटी पास से गुजर रही थी, उसके पेट पर बर्थ मार्क देखकर चौंकी। उसके करीब जाकर बोली, ऐसा निशान तो मेरी बेटी के पेट पर था। वो रोने चलाने लगी। ईशल ने जब उसे बताया कि उसे पैदा होते ही कोई हीरा मंडी बेच आया था तो वो उसे गले लगाकर बोली, तुम मेरी ही बेटी हो। ईशल ने कहा, जब तक डीएनए टेस्ट से कंफर्म ना हो जाए मैं आपको माँ तस्लीम नहीं करूँगी। उसकी ख्वाहिश पर जब तक टेस्ट होता, अगले दिन रिपोर्ट आती, तब तक ईशल ने पार्लर वाली आंटी से बात न की, ना लिफ्ट कराई। उसकी जब रिपोर्ट आने तक पार्लर वाली आंटी उसे बड़े वसूख से कहती रही, देखना तुम मेरी ही बेटी होगी। मैं इस निशान को देखकर सोच रही थी कि शुक्र है मेरी बेटी के पेट पर यह काला निशान है और छुपा हुआ है, मुंह वगैरह पर सामने कहीं नहीं है। जब रिपोर्ट आई तो उसके बाप और भाई ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है, ये महज इत्तफाक है कि ये सेम निशान है, मगर ये तुम्हारी बेटी नहीं। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। ईशल से बोले, हम मजाक कर रहे थे। फिर बाप भाई दोनों से गले लगाकर चूमते रहे, रोते रहे और उसकी माँ से बोले, हम मजाक कर रहे थे। ईशल भी तड़प कर माँ के गले लगी और माँ उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगती रही। कुछ दिनों बाद उसके भाई ने जिस दिन वापस मुल्क से बाहर जाना था, उसने वापसी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और ईशल का भाई बोला कि मेरा बूढ़ा बाप अकेला प्रॉपर्टी का बिजनेस चला रहा है, 2 माह में उसके साथ शामिल रहा हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि हम पाकिस्तान में रहकर भी अच्छा गुजारा कर सकते हैं। जो मेहनत हम बाहर मुल्क के लिए करते हैं वही पाकिस्तान के लिए करें तो बहुत ज़्यादा न सही, मगर हम इतना तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ही थोड़े पर ही गुजारा करके बाहर की ख्वारी और अपने प्यारों की ख्वारी से बचे रहें। ईशल की भाभी ने भी कहा कि अगर ईशल इधर ना होती तो शायद मेरा दिल भी इधर न लगता, क्योंकि मेरी सास साहिबा की आदत मुझे बिल्कुल पसंद न थी। उसकी सास झट बोली, मैं मानती हूँ कि मेरी आदत अच्छी न थी, मगर अब बेटी मिलने के बाद मैं सुधर चुकी हूँ। ईशल की भाभी ने कहा कि ये सच है कि अब आपने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है, तो इसीलिए मैं भी पाकिस्तान रहने पर रज़ामंद हुई हूँ, क्योंकि ईशल बहुत अच्छी आदत की मालिक है। ईशल ने कहा कि मुझे वहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा बहुत अच्छी बातें बताती रहती थी। उसकी तरबियत थी कि मेरी आदत भी सुधर गई, क्योंकि मेरी मालकन तो लालची औरत थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर धंधा चलाते थे, वो फिर मेरी क्या तरबियत करती। ईशल की भाभी बोली, मेरी सास वैसे तो अच्छी रहमदिल औरत है, आपको भी रहमदिली में कितना अच्छा रखा, मगर मुझे रोक टोक बहुत करती थी और चाहती थी कि ये मेरी मर्जी के बगैर कोई काम न करे, जिससे मैं तंग पड़ती थी। मगर अब मैंने भी उनको समझ लिया है कि बुजुर्ग चाहते हैं कि उनको अहमियत दी जाए। अगर कहीं जाना हो तो पूछ लेने में क्या हर्ज है। अगर इनके साथ दोस्ताना गपशप लगाओ या इनसे पुराने किस्से छेड़ दें तो वो खुश हो जाते हैं। ईशल की माँ ने अपने घर वालों से कहा कि वो अपनी बेटी को उसका हक दिला कर रहेंगी। उसने बेटी को समझा बुझाकर मजबूर किया कि तुम्हारे बेटे का क्या कसूर है कि वो अपने बाप से दूर रहे। उसका बेटा भी बाप का पूछता रहता था। जब ज़रा बड़ा हुआ तो ईशल ने उसे सारी सच्चाई बता दी, तो वो बहुत अक्लमंद बच्चा था। वो माँ को तसल्लियाँ देने लगा कि मुझे आपकी मजबूरियों का अंदाज़ा है, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। ईशल ने उसे गले लगा कर प्यार किया। 7 साल का हो गया था। छोटी उम्र में ही वो बहुत समझदार हो गया था। ईशल की माँ ने दोबारा सिम ऑन की और बेटी से बोली, अरसम का नंबर ऑन कर। उसने जब नंबर ऑन किया तो अरसम अपने घर में नाश्ते के बाद बच्चों के साथ बैठा गपशप लगा रहा था। नंबर देखकर जोर से चीख मारकर बोला, ये क्या है? ये नंबर तो ईशल का था। सब घर वाले उसकी चीख सुनकर हैरान रह के कि ये क्या हुआ।
तो उसने बताया कि ईशल के नंबर से कॉल आई थी। उसकी दूसरी बीवी ने हैरत से उसे देखा। अरसम ने जब बेसब्री से कॉल मिलाई तो पहले ईशल की माँ ने हेलो कहा। वो बेचैनी से बोला, जी आपने खैरियत से कॉल की थी? तो ईशल की माँ ने कहा कि तुम्हारी कुछ हिमानतें हमारे पास थीं, वो देनी थी। वो कदरे मायूसी से बोला, जी सामान वगैरह? ईशल की माँ ने कहा, हाँ। वो बोला, मैं खुद आकर ले लेता हूँ। ईशल की माँ ने कहा, क्या हमें अपने घर नहीं बुलाना चाहते? तो वो जोश और जज्बाती अंदाज में बोला, जी भला मैं आपसे क्यों ना मिलना चाहूँगा। आपने मेरी बीवी को सहारा दिया और बच्चे को भी। मैं तो सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। फिर वो रोते हुए बोला, मगर आपने मुझे खिदमत का मौका ही न दिया। ईशल की माँ बोली, अच्छा हम अभी आते हैं। वो अपनी बीवी को खुशी से बताने लगा कि वो मेरे बच्चे की नानी बनी हुई थी और आप लोग भी उन्हें नानी ही समझना। बच्चियाँ खुश होने लगीं। एक 6 साल की बच्ची थी और एक 5 साल की और एक 4 साल की। सबके दिल में भाई की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। सौतेली माँ भी शोहर को खुश करने के लिए और ससुर वगैरह को भी खुश करने के लिए हर वक्त अरसम के बेटे का नाम लेती रहती। जब ईशल घर पहुंची तो जैसे एक भौंचाल आ गया। अरसम खुशी से जैसे पागल हो गया हो। पागलों की तरह कभी अपने बेटे को गले लगाकर चूमता, कभी ईशल को कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। सब उसकी खुशी में खुश होकर रो भी रहे थे और ईशल और उसके बेटे को बहुत प्रोटोकॉल दे रहे थे। उसने सब सच्चाई बता दी थी तो अरसम के घर वाले उसके वालिदैन को भी बहुत इज्जत दे रहे थे। सौतेली माँ और अरसम की बहन भी ईशल और उसके बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। सब घर वालों की तरफ से इतनी तवज्जो और मोहब्बत देखकर अरसम की दूसरी बीवी से बर्दाश्त न हुआ कि उसकी अपनी बच्चियां भी ईशल पर फिदा हो रही थीं और छोटी बच्ची तो इसकी गोद से उतर न रही थी। ईशल के वालिदैन और भाई भाभी बहुत खुश और मुतमईन होकर चले गए। अरसम अपनी बेटियों से कह रहा था कि आखिर आप लोगों को अपना भाई मिल ही क्या, और भाई भी बहनों पर फिदा हो रहा था। सब उसके पास से हट नहीं रही थी। रात को सोने का वक्त आया तो अरसम के बाप ने कह दिया कि अब ईशल के साथ अरसम ज्यादा वक्त गुजारेगा। अगर एक हफ्ता ईशल के साथ तो एक दिन दूसरी बीवी के साथ रहेगा। अरसम ने जब बेटे को अपनी बहन के पास सोते देखा तो मुस्कुरा दिया। अरसम ईशल के कमरे में सोया। ईशल सुकून से सो गई, मगर अरसम जागता रहा और बच्चियों के कमरे में भी देखता रहा। उसकी बीवी उदास सी लेटी हुई थी। जब अचानक अरसम कमरे में आया तो वो खुश हो गई। जब उसने बताया कि उसे अपने रूम के बगैर नींद नहीं आ रही और उसे उसका भी ख्याल आ रहा था तो वो एकदम खुश हो गई और उसके दिल को तसल्ली मिल गई कि उसका शौहर उसके बगैर नहीं रह सकता। और उसके दिल में ममता वाला एहसास भी आ गया कि उसकी बच्चियों को भाई भी मिल गया है और उसकी सोकन भी उसके बच्चों को बहुत प्यार कर रही थी। यही सोचकर उसने दिल को कुशादा कर लिया और शौहर को वापस ज़बरदस्ती सोकन के कमरे में भेज दिया कि उसके दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसकी सोकन कितनी बेलौस है, किस तरह उसकी बच्चियों से प्यार करती रही, और एक वो है कि उसे उसकी या उसके बच्चे की परवाह तक न थी। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो अपनी सोकन से बहुत प्यार करेगी और उसका हक नहीं छीनेगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।